We, Abhishek and Navneet Kumar, co-founding partners, Saxenas and Kumar Law Chambers, welcome you all on behalf of Pracolearn. And I would like to introduce our worthy speakers who are tax experts, Mr. Abhinav Saxena and Mr. Vipul Gupta. Our first speaker, Mr. Abhinav Saxena, is a co-founding partner of Saxenas and Kumar Law Chambers and is a tax lawyer and expert and has gained a wide range of experience and exposure in this field. Our second speaker, Mr. Vipul Gupta, he is a CA finalist and has worked with various tax experts and firms, and his practice area is income tax related and has a wide range of exposure in the income tax matters. Before I start with the webinar, I just want to give a brief introduction of what is Pracolearn. Basically, Pracolearn is an initiative of Saxenas and Kumar Law Chambers, which is established in the form of an LLP. And Saxenas and Kumar Law Chambers is working in the field of legal consultancy, practical implication of law, litigation, and other various fields. So what drives us to come up with an initiative of Pracolearn? Pracolearn basically means practical learning. So it holistically covers the all practical aspects which are quite necessary in the professional world. It creates a bridge between both theory and the practical aspects. What is being required in the legal professional world. It helps the students and the graduates and any other professional who wants to gain practical professional knowledge, so that he can excel and take up the challenges in the professional world. So basically, it is our motto to spread the practical knowledge amongst the general public, students, law students, and even professionals as well. We are committed to train the students and spread the knowledge of practical implications and procedures. So there is one more important thing which I would like to mention, that Pracolearn is also working, apart from webinars, we are also working on some online courses, which we are going to discuss in the announcement session. Also, it is a request with all the participants to kindly keep their microphones on mute mode throughout this session. And if they have any query or any question, they are requested, and I humbly request them to put their queries in the chat box, so that we can take up the queries, me and Navneet, and put up those queries in front of our speakers in the question answer session at the last of the when the speakers complete their presentations. And thereafter we'll come up with some announcements, some very important announcements, which will be which will be very beneficial for you all. So with this note, I would like to invite Mr. Abhinav Saxena to present the brief introduction of the webinar, day 2. Welcome all of you in today's webinar. Today is the second part of the webinar on the topic of changes in income tax due to COVID-19 and relief measures as per the Ministry of Finance, Government of India. In the last part of the webinar of yesterday, we have covered many topics under which changes have been brought in income tax due to coronavirus pandemic. All such changes, whichever we have covered yesterday, are within the ambit of the ordinance, circulars, press releases, etc. given by the Ministry of Finance, Government of India. In the last part of the webinar, we have covered the topics like ITR, income tax return due dates filing for the financial year 2018-19 and financial year 2019-20, intimation, scrutiny assessment, best judgment assessment, income escaping assessment, extension of time for investment, and residency status of NRIs and foreign nationals. We have covered almost all sort of changes brought about by this pandemic on these income tax matters in a very detailed manner, covering the due dates, filing extension to any compliance by the SSE, to time limit for completion of assessment, to appeal before the higher authorities. Today is the second part of the webinar, and we all know and we all are well aware of the fact that due to coronavirus,
a complete national lockdown is there in all over India, and hence no economic and commercial activities are going on. A complete stagnation is there in economic sector of India. That's why Ministry of Finance has come with a slew of measures for putting the economy on track and to give some relief to the public at large. After considering the various problems relating to taxation and other issues, the Ministry of Finance has brought the Taxation and Other Laws Ordinance 2020 and various circulars, press notes, and important updates relating to taxation matters. But our webinar is on the topic of income tax. So we will be covering every aspect relating to changes in income tax due to coronavirus pandemic. For example, if we are talking about advance tax, then various questions arise in our mind, like whether due date of payment of advance tax extended, and if we delay in payment of advance tax, whether any relaxation in interest rate. So, Ministry of Finance gives all answer of such type of queries and questions which are coming in the mind of the taxpayer, as this is a general issue and a general problem. The topics which we are going to cover in this part 2 of the webinar are: the first part which we will be dealing is issues relating to advance tax, TDS, TCS, and their due date of filing return. TDS, tax deducted at source, tax deducted at source. And the third is equalization levy and its compliances. The second part which we will be going to deal in this part of the webinar is compliance relating to Vivad se Vishwas scheme and relaxation in payment of disputed tax. The third topic is issues relating to filing of various reports, statements, and applications. The fourth issue is extension of time limit for Aadhaar PAN linkage. And the last topic which we'll be covering in the part 2 of the webinar is income tax refund. So today the topic will be on will be dealt by Mr. Gupta. And so over to you, Mr. Gupta. And now you can proceed forward. Okay, thank you, Abhinav ji. Hello, everyone. Okay. इम्पोर्टेंट इस नोट को इम्पोर्टेंट नोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कही गई हर बात हमें आगे आने वाली स्लाइडों में काम आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, इसमें लिखा है फाइलिंग ऑफ अपील। अपील का मतलब क्या होता है कि जब हम एओ के ऑर्डर से डिससेटिस्फाई होते हैं तो आगे अपील फाइल करते हैं। तो अपील करने का जो समय होता है वो 30 दिन का होता है। अगर वो 30 दिन 20 मार्च से 29 जून के बीच एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको अब एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। इसी प्रकार हम आगे जितनी भी बात पढ़ेंगे उसमें यही ज़्यादातर सब में यही लगेगा कि अगर टाइम एक्सपायर हो रहा है लॉकडाउन के पीरियड में तो अब उस चीज़ का कंप्लायंस हम 30 जून को कर सकते हैं। दूसरा इसमें लिखा है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग by the authority and any compliance by taxpayer under Income Tax Act where the time limit is expiring between 20 March to 29 June shall be extended to 30th June। यहाँ पे एक शब्द लिखा है any compliance by taxpayer, मतलब इनकम टैक्स के अंदर जितने भी compliances हैं, चाहे आपको किसी नोटिस का रिप्लाई करना है, चाहे आपको कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, चाहे किसी ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है, कोई भी कंप्लायंस करना है टैक्स पेयर को, वो अगर उसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाती है 20 मार्च से लेकर 29 जून तक तो उसको रिलैक्सेशन दी है इनकम टैक्स ने ऑर्डिनेंस के थ्रू कि अब वो उस कंप्लायंस को 30 जून को कर सकता है। नेक्स्ट। सो आवर फर्स्ट टॉपिक सब टॉपिक इज रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट ऑन डिले पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एडवांस टैक्स होता क्या है, इसका मतलब क्या है। लेकिन उससे भी पहले जानना ये जरूरी है कि नॉर्मली एक एसएससी को, एक टैक्स पेयर को टैक्स पे कब करना होता है नॉर्मली। तो नॉर्मली एक एसएससी को टैक्स पे करना होता है जब वो पूरे साल भर में इनकम कमा लेता है और उसके बाद जब अगले साल जब वो रिटर्न भरता है उस रिटर्न को फाइल करने से एक दिन पहले उसको टैक्स की पेमेंट करनी होती है। यानी अगर हम एग्जाम्पल लें 2019-20 की का, तो उसकी रिटर्न फाइलिंग की मैंने आपको कल डेट बताई थी 30 नवंबर
फाइनल डेट है, तो अगर वो 29 नवंबर को रिटर्न फाइल कर रहा है तो 28 नवंबर तक उसको अपना टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कि हमने सेल्फ से अपनी इनकम जोड़ी कितनी हुई और उस पे लॉ के हिसाब से जो रेट एप्लीकेबल है वो टैक्स कैलकुलेट करा। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने एडवांस टैक्स की तरफ। ये क्या है? इसके नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि ऐसा टैक्स जो एडवांस में पे करना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो इस टैक्स से ही आगे खर्चा करती है, और ये टैक्स अगर 1 साल बाद उनको मिलेगा तो वो डिले हो जाएगी। इसलिए जिस साल आप इनकम कमाते हैं उसी साल साथ के साथ इंस्टॉलमेंट में ये आपसे टैक्स लेते हैं, जिसे बोला जाता है एडवांस टैक्स। इसकी इंस्टॉलमेंट जो होती है पहले क्वार्टर की 15 जून होती है, दूसरे क्वार्टर की 15 सितंबर होती है, तीसरे क्वार्टर की 15 दिसंबर होती है और चौथे क्वार्टर की 15 मार्च होती है। अब ये एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अराइज कब होती है? एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अराइज जब होती है जब अगर इसका अमाउंट 10,000 या उससे ज्यादा हो। उससे कम है तो एडवांस टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं। एडवांस टैक्स कैलकुलेट किस इनकम पे होता है? क्योंकि अगर हम पहले क्वार्टर पे खड़े हैं, हमने तो अभी 3 महीने की इनकम हमें एक्चुअल पता है, आगे की इनकम तो पता नहीं, तो एक एस्टिमेट लेता है बिजनेसमैन या जो भी टैक्स पेयर है कि मेरी इतनी साल भर में इतनी इनकम हो सकती है, उस पे एस्टिमेट करके वो टैक्स कैलकुलेट कर देता है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें इसमें क्या रिलैक्सेशन दी गई है? रिलैक्सेशन क्या टाइम लिमिट में दी गई है? नहीं, रिलैक्सेशन टाइम लिमिट में बिल्कुल नहीं दी। 15 मार्च के दिन पे करना है तो करना है। जिसने पे कर दिया वो ठीक, उस पर कोई उसको आगे कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने पे नहीं करा है और वो डिले हो गया है, तो रिलैक्सेशन इस चीज में है कि जो पहले डिले होने पर इंटरेस्ट रेट लगता था 1%, अब वो 0.75% लगेगा। अगली बात डिपार्टमेंट ने ये भी क्लियर करी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, कि डिले कितना हो सकते हैं। डिले ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने 1 साल डिले कर देंगे। डिले का भी उन्होंने टाइम पीरियड बता दिया कि आप 20 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक का डिले करते हैं, तभी आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगी कि 1% की जगह 0.75% इंटरेस्ट रेट देना होगा पर मंथ का। नेक्स्ट, अगला है रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट ऑन डिले पेमेंट ऑफ TDS, TCS एंड टाइम लिमिट फॉर देयर रिटर्न्स। तो सबसे पहले वही, मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों को पता होगा TDS, TCS क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको ये जानना है कि ये TDS होता क्या है या TCS होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो आपकी इनकम का सोर्स है, जो आपकी इनकम का सोर्स है वहां से आपसे TDS काटा जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक मिस्टर ए है जो एक कॉन्ट्रैक्टर है और एक मिस्टर बी है जो बिजनेसमैन है। मिस्टर ए अपनी लेबर प्रोवाइड करते हैं मिस्टर बी को, और मिस्टर बी उसके बदले में इनको पेमेंट करते हैं। तो जो पेमेंट आएगी वो TDS कट के आएगी। यानी जो इनकम का सोर्स था वो बिजनेसमैन, उन्होंने वहीं से ही आपका टैक्स काट लिया। वैसे गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेती है? या तो डायरेक्ट आपसे लेती है एडवांस टैक्स के रूप में या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में। यहाँ पे कोई और आपका टैक्स ले रहा है, तो सवाल उठता है जो वो आपसे टैक्स ले रहा है क्या वो फर्दर आगे गवर्नमेंट को जमा करेगा? यस, उसके हाथ में थोड़ी ना रह जाएगी वो पेमेंट, वो आगे पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। उस पेमेंट की भी टाइम लिमिट होती है कि उसको जिस महीने उसने TDS काटा है उसके अगले महीने की 7 तारीख तक उसको वो अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। उसका ऑनलाइन प्रोसीजर वगैरह होता है। अब बात करते हैं TCS की। TCS TDS का बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल उल्टा है। जिस प्रकार TDS में इनकम के सोर्स से TDS काटा जाता है, इसी प्रकार TCS में जहां पैसा रिसीव होता है वहां से TCS कलेक्ट करा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिस्टर ए है जो टिम्बर का व्यापार करते हैं, लकड़ी का व्यापार करते हैं, और एक मिस्टर बी है जो उनसे वो लकड़ी खरीदने आए हैं। तो मिस्टर ए जब उनको लकड़ी बेचेंगे तो उसमें उनसे TCS भी कलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन वही कि क्या TCS का पैसा जो मेरे पास आता है क्या वो मैं अपनी जेब में रखूंगा? नहीं,
वो आगे गवर्नमेंट के अकाउंट में अगले महीने की 7 तारीख तक डिपॉजिट करना पड़ता है। अब आते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड बात। क्या ये जो टाइम लिमिट है पेमेंट करने की टीडीएस को अगले महीने की 7 तारीख तक, क्या इसमें कोई रिलैक्सेशन है कोरोना वायरस की वजह से? नहीं, आपको पेमेंट करनी है तो करनी है अगले महीने की 7 तारीख तक। लेकिन रिलैक्सेशन ये है कि अगर आप डिले हो जाते हैं तो 1% की जगह अब आपको सिर्फ 0.75% पर मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगली और दूसरी बात इसमें ये है कि डिले जो आप हो सकते हैं वही 20 मार्च से 30 जून तक हो सकते हैं मैक्सिमम। अगली रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ने दी वो ये दी कि टीडीएस और टीसीएस के जो रेट हैं उनको 25% से कम कर दिया। यानी कि अगर टीडीएस 10% काटना है तो अब लॉकडाउन के पीरियड के बाद 14 मई से ले तक 31 मार्च 2021 तक आपको 25% कम यानी 10% की जगह सिर्फ 7.5% टीडीएस देने की रिक्वायरमेंट है। अब एक सवाल उठता है कि क्या 31 मार्च 2021 के बाद टीडीएस रेट वही पुराने जो एप्लीकेबल होते हैं वही देने पड़ेंगे या 25% घटा के देने पड़ेंगे? तो सिंपल सी बात है, लॉ में साफ लिख दिया कि 14 मई से ले तक 31 मार्च 2021 तक ही ये एप्लीकेबल है। इसके बाद अगर आप टीडीएस काटते हैं तो वही ओरिजिनल रेट से काटने पड़ेंगे जो लॉ में है। अगली रिलैक्सेशन दी फॉर्म 15G और 15H से रिलेटेड। तो पहले मैं एक आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ कि ये 15G 15H फॉर्म है क्या, इसका यूज कैसे होता है और रिलैक्सेशन क्या दी गई है। अब मान लीजिए आप मिस्टर ए हैं और एक मिस्टर बी है। आप मिस्टर ए हैं और एक बैंक है। आपने बैंक में कराई थी एफडी और उसका इंटरेस्ट बनता था आपका 12,000 रुपए। जब आप बैंक में गए अपने पैसा लेने के लिए तो बैंक वाले आपको 12,000 की जगह सिर्फ 10,000 इंटरेस्ट देता है। तो आप कहते हैं कि आपने मेरा इंटरेस्ट क्यों काटा, मेरा तो इंटरेस्ट मेरा 12,000 रुपए दो। तो वो बैंकर उनको कहते हैं कि हमने आपका टीडीएस काटा है एज पर लॉ। मैं भन्ना गया, बहुत गुस्सा हो गया कि भाई ऐसे कैसे काट लोगे। मैं मैनेजर के पास सीधा चला गया कि ये क्या तरीका है, आप टैक्स क्यों काट रहे हैं, मेरा तो कोई टैक्स वगैरह बनता ही नहीं, मैं तो रिटर्न फाइलिंग भी नहीं करता, आप मेरा टैक्स क्यों काट रहे हैं, या रिटर्न फाइलिंग करता भी हूँ तो मेरा टैक्स नील ही आता है, या जो मैक्सिमम लिमिट है 2,50,000 उतने तक ही मेरी इनकम है, आपने टीडीएस काटा क्यों? तो मैनेजर उसको बैठा के आराम से समझाते हैं कि देखो भाई, ऐसी चीजों के लिए आपको पहले ही अपने सीए से कंसल्ट करके रखना चाहिए था। अगली बार से ध्यान रखना, अगर आपको अपने टीडीएस नहीं कटवाना है तो 15G फॉर्म हमें दे दीजिए। 15G फॉर्म होता है 60 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए और 15H फॉर्म होता है 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए। इसका वर्क क्या है कि आप इसके अंदर लिख के डिक्लेरेशन देते हैं कि मेरी इनकम पे टैक्स 0 बनता है, इसलिए मेरा टीडीएस ना काटा जाए। अब इसमें कंप्लायंस, इसमें रिलैक्सेशन क्या दी गई? इसमें रिलैक्सेशन ये दी गई कि अगर आपने कोई 20-21 में एफडी कराई है, अगर आपने कोई 20-21 में एफडी कराई है तो उसका 15G फॉर्म आप कैसे दे पाएंगे? 20-21 में तो अप्रैल से ही लॉकडाउन चल रहा है, मार्च से ही। तो इसमें क्लैरिफिकेशन ये आई कि जो आपने 15G फॉर्म दिया था 2000 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, वही आपका एप्लीकेबल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 20-21 तक के लिए। वो भी कब तक के लिए? 30 जून 2020। अगली रिलैक्सेशन ये दी इन्होंने कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 15G फॉर्म देता है तो जो अगला व्यक्ति जैसे 15G फॉर्म रिसीव हुआ था, जैसे बैंकर को रिसीव हुआ, तो उसे आगे वो इन्फॉर्म करना पड़ता है डिपार्टमेंट को क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइलिंग के फॉर्म में। वो क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइलिंग की ड्यू डेट जो होती है वो होती है क्वार्टर एंड होने के बाद 30 अप्रैल तक। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, फोर्थ क्वार्टर जब खत्म हुआ 19-20 का, तो उसकी उन्हें स्टेटमेंट फाइल करनी थी फोर्थ क्वार्टर की। कब तक? 30 अप्रैल 2020 तक। उस बीच तो लॉकडाउन चल रहा है, कैसे स्टेटमेंट फाइल करें? तो इसके लिए इस टाइम लिमिट को भी बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि आप स्टेटमेंट 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। अगली रिलैक्सेशन ये हुई कि ये जो 15G और 15H फॉर्म होता है
ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए एप्लीकेबल होता है। तो क्या इस तरीके की रिलैक्सेशन कंपनीज को नहीं मिलेंगी, पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलेंगी, या अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होते हैं, क्या उनको इस तरीके की रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी? मिलेगी। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी अलग से सेक्शन बनाया है, सेक्शन 197, जो इस टाइप की रिलैक्सेशन देता है कि अगर आपको TDS नहीं कटवाना अपना, तो उसके लिए प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ क्या प्रोसीजर है। मान लीजिए आप मिस्टर ए हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है, और एक मिस्टर बी हैं जो बिजनेसमैन है। आपने 1 लाख रुपए की सर्विस दी उन्हें, और उन्होंने बदले में आपको दिया 98,000 रुपए, 2 रुपए आपके TDS के काट लिए। आप उसको फोन करके कहते हैं भाई डील तो 1 लाख की हुई है, 98,000 क्यों दे रहे हो? वो कहते हैं आपसे कि मैंने आपका 2,000 रुपए TDS काटा है। वो परेशान हो गए कॉन्ट्रैक्टर कि यार ये 2,000 रुपए बता क्यों काट लिए। मैं उनका पड़ोसी था, वो मेरे पास आए शाम को कि यार ऐसे ऐसे बात हो गई। मैंने उनको कहा देखो, एक सेक्शन 197 होता है इनकम टैक्स के अंदर, जिसमें आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर होता है, वो मैं आपका फॉलो कर दूंगा। उन्होंने पूछा मेरे से क्या प्रोसीजर है? मैं क्या, सिंपल सी एक एप्लीकेशन फाइल करिए डिपार्टमेंट को, अपना सारा इनकम का ब्यौरा दीजिए कि मेरी इतनी इतनी इनकम बनती है, मेरे पे टैक्स बनता ही नहीं है, तो मेरा TDS नहीं कटना चाहिए। डिपार्टमेंट अगर उससे सेटिस्फाई हो जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आपको उसका सर्टिफिकेट बना के दे देगा कि ठीक है आपका TDS नहीं कटना चाहिए, और आप फर्दर उस सर्टिफिकेट को आगे उस बिजनेसमैन को दे देते हैं, और वो आपके 2,000 रुपए वापस कर देगा। तो ये एक मैकेनिज्म है 197 का। आपने देखा 15G फॉर्म तो डायरेक्टली भर के मैं दे सकता था, लेकिन इसके अंदर मेरे को सबसे पहले अप्लाई करना है डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट फिर मुझे सर्टिफिकेट देगा, फिर मैं वो आगे बिजनेसमैन को दूंगा, और फिर वो मेरा जो TDS काटा मुझे वापस कर देगा। अब इसमें बात करते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड क्या दिक्कत है। अगर मैंने 2020-21 में कोई एप्लीकेशन फाइल करी है और वो लॉकडाउन की वजह से डिपार्टमेंट में ही अटकी हुई है, या मुझे एप्लीकेशन फाइल करनी है लेकिन लॉकडाउन की वजह से फाइल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस केस में क्या कोई रिलैक्सेशन है? तो उन्होंने कहा हाँ, आपको रिलैक्सेशन है। आपने जो 19-20 में सर्टिफिकेट लिया था डिपार्टमेंट से, आप उसको ही आगे चला सकते हैं 30 जून 2020 तक, 2020-21 के लिए। ओके, नेक्स्ट, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ TDS एंड TCS। अब क्या होता है, जो हमारा TDS काट रहे हैं, TCS काट रहे हैं, उनको भी आगे रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। तो TDS की 4th क्वार्टर की रिटर्न फाइलिंग की आखिरी डेट होती है 31 मई 2020, जिसे अब एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। और TCS के 4th क्वार्टर की रिटर्न की आखिरी डेट होती है 15 मई, जिसे अब बढ़ा के 30 जून कर दिया गया है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट ऑन डिले पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। ये इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट 2016 में आया था। इसको लाने की क्या जरूरत थी, पहले उसको डिस्कस करते हैं। बहुत सी फॉरेन कंपनी होती हैं जैसे गूगल, फेसबुक, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विस देती हैं अपनी वेबसाइट पर, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे फेसबुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विस देती हैं बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इनके थ्रू एडवर्टाइज करते हैं, और बदले में इस सर्विस के उनको पेमेंट करते हैं। तो इशू क्या था कि ये जो कंपनियां थी, ये अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है ऑफिस, वो खोलती थी ऐसी कंट्रीज में जहां टैक्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होते, जिन्हें बोला जाता है टैक्स हेवन कंट्रीज। अब होता क्या था कि जब इनको पैसा रिसीव होता था, इन पे कोई टैक्स ही नहीं लगता था उन कंट्री में, और इधर इंडिया के बिजनेसमैन की बात करी जाए, जो पेमेंट कर रहा है वो उसको अपना खर्चा क्लेम कर लेता था अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जा पाता था। इसलिए 2016 में इन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट लाया। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल TDS की तरह ही है कि जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है वो TDS काटेगा, और अगले महीने की 7 तारीख तक डिपॉजिट करा देगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। और उसके बाद जो जिन जिन लोगों का उसने इक्वलाइजेशन लेवी काटा है,
उसकी डिटेल रिटर्न फाइलिंग के थ्रू, स्टेटमेंट के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फाइल कर देता है। इसमें अंतर इतना है कि वहां पे क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल होती थी टीडीएस में, यहाँ पर एनुअल रिटर्न फाइलिंग होती है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड क्या रिलैक्सेशन है। कि आप पेमेंट इक्वलाइजेशन की लेवी की पेमेंट में कोई रिलैक्सेशन दी गई है? नहीं। अगले महीने की 7 तारीख तक करना है तो करना है। जिस महीने आपने सर्विस ली उसके अगले महीने आपको इक्वलाइजेशन लेवी जमा कराना है तो कराना है। लेकिन अगर आप डिले हो जाते हैं तो रिलैक्सेशन ये है कि 1% की जगह अब आपको सिर्फ 0.75% पर मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो पहले 1% दिया जाता था। दूसरी रिलैक्सेशन ये है कि डिले जो होना चाहिए वो 20 मार्च से लेकर 30 जून तक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा डिले नहीं लिया जाएगा। अगली रिलैक्सेशन ये है कि अगर आप इक्वलाइजेशन लेवी काटते नहीं है या उसको पेमेंट करने में डिले हो जाते हैं तो इन सब के लिए पेनल्टी प्रोविजन होते थे इक्वलाइजेशन लेवी के लॉ में। अब वो सारे लॉकडाउन की वजह से ये सारे इनको प्रोविजन को स्थगित कर दिया गया है, तो किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं देनी अगर आप डिले हो जाते हैं, तो सिर्फ इंटरेस्ट देना है। अगली बात यह है कि आपको जब आपने टीडीएस ये इक्वलाइजेशन लेवी काटा तो अगले साल आपको इसकी रिटर्न फाइलिंग करनी है, तो उसकी ड्यू डेट है 30 जून। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये घबरा रहा हो कि अगर मैंने काटा है तो मेरे को कब तक फाइल करनी है, तो 30 जून तक का इन्होंने समय दिया है, आप फाइल कर सकते हैं। अगला इशू ये है कि इक्वलाइजेशन लेवी में कि आपकी पेनल्टी नहीं बनती थी, आपने सब कुछ समय पर कराया, समय पे इक्वलाइजेशन लेवी काटा, समय पर डिपॉजिट कराया, समय पे रिटर्न फाइलिंग करी, फिर भी पता नहीं किस वजह से डिपार्टमेंट ने आपको एक पेनल्टी ऑर्डर लगा दिया, आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगा दी। तो आपके पास ये अधिकार होता है, आपके पास ये रिलीफ होती है कि तो आप इसको आगे सीआईटी अपील में इसका जवाब दे सकते हैं, इसके लिए आगे लड़ सकते हैं कि ये पेनल्टी मेरे पे क्यों लगाई गई, मेरी तो कोई बनती नहीं। इस सीआईटी अपील में अपील फाइल करने का जो टाइम लिमिट होती है वो 30 दिन के अंदर होती है। पेनल्टी ऑर्डर आने के 30 दिन के भीतर आपको अपील फाइल करनी होती है। अगर ये 30 दिन एक्सपायर हो रहे हैं लॉकडाउन के दौरान तो ये भी अब एक्सटेंड करके 30 जून कर दिए गए हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, अंडर विच सेक्शन और क्लॉज वी कैन फाइंड आउट अबाउट ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस क्लोजर अंडर। मिस्टर विपुल, देयर इज अ रिक्वेस्ट कि आप अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लीजिए एंड अच्छा, we'll take up question and answer session in the last after your presentation is over. ओके ओके, I'm sorry to interrupt you. ओके। नेक्स्ट, विवाद से विश्वास स्कीम। ये स्कीम इस साल ही आई है 2020 में। जो हमारे इंडिया का बजट आता है 1 फरवरी को हर साल, उसमें इसको पेश करा गया था और ये सक्सेसफुली आज की डेट में लॉ बन चुका है, ये एक्ट में तब्दील हो गया है। ये एप्लीकेबल है 18 मार्च 2020 से। ये लॉ है क्या, विवाद से विश्वास स्कीम है क्या, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आपका कोई इनकम टैक्स में केस पेंडिंग है सीआईटी अपील में, आईटीएटी में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो आप अपना इनकम टैक्स का केस बंद करवा सकते हैं बाय अवेलिंग द विवाद से विश्वास स्कीम। ये स्कीम है क्या, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक मेन बात जो आपको बताऊं वो ये है कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं जो 31 जनवरी 2020 तक पेंडिंग है, सिर्फ वही इसमें कवर होंगे। 31 जनवरी के बाद का कोई भी केस इसमें नहीं लिया जाएगा। 31 जनवरी 2020 तक जितने केस पेंडिंग है सिर्फ वही इस स्कीम में एप्लीकेबल होंगे। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये स्कीम है क्या और इसके आगे क्या प्रोसीजर है इसमें अपना
न्याय लेने के लिए, अपना केस बंद करवाने के लिए। मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका केस पेंडिंग है ITAT में। आपका केस पहले शुरुआत हुई स्क्रूटनी असेसमेंट से, AO से, फिर आप उसने जो डिसीजन लिया उससे सेटिस्फाई नहीं थे, तो आपने उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करी CIT अपील में। आप CIT अपील के भी ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं थे, आपने आगे अपील फाइल करी ITAT में। और अब आपको लग रहा है कि भाई अब केस में दम नहीं है, अब मैं हारता जा रहा हूँ और लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, फालतू में आगे मैं अपील फाइल करता हूँ हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट की फीस देनी पड़ेगी, ये CA की फीस देनी पड़ेगी या एडवोकेट की फीस देनी पड़ेगी और मत्थापच्ची अलग होगी। तो इस केस में वो चाहे तो अपना इस स्कीम में आकर, विवाद से विश्वास स्कीम में आकर अपना ये केस बंद करवा सकता है। केस बंद करवाने की शर्तें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले 2 टर्म समझिए क्या क्या होती है। एक होती है डिस्प्यूटेड टैक्स और एक होती है डिस्प्यूटेड पेनल्टी। डिस्प्यूटेड टैक्स क्या होती है? अगर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, AO है, उसने आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट, जब आपने रिटर्न फाइलिंग करी, उनके यहाँ आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट पहुंची, तो वहां पर उन्होंने 2 एक्सपेंडिचर ऐसे निकाले जो जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, जिसका कोई एविडेंस नहीं था। उन्होंने आपको बुलाया एक्सप्लेनेशन देने के लिए, आप नहीं दे पाए। उसने उन दोनों जो खर्चे थे जो जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उनको वो इनकम मानकर उस पर टैक्स लगा दिया उन्होंने। अब वो टैक्स, लेकिन आप अड़े हुए हैं, SSC अड़े हुए हैं कि भाई ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारा एक्सपेंसेस है, बिल वगैरह सब है, लेकिन AO सेटिस्फाई नहीं है। वो कह रहा है कि ये फेक एक्सपेंडिचर है, आपने फेक बिल बनवा लिया है, मैं इसको नहीं मानता, कोई पक्का प्रूफ लाइए, हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे। उसने कहा ठीक है, मैं आगे आपके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करूंगा। SSC आगे CIT अपील में गया, वहां पर भी उसको कोई न्याय नहीं मिला। तो ये जो वो जो टैक्स है वही डिस्प्यूटेड टैक्स है कि जो एक्सपेंडिचर थे उसको वो साबित नहीं कर पा रहा, डिस्प्यूट में चल रहा है वो, उस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स लगा दिया उन एक्सपेंडिचर को इनकम मानकर। तब ऐसे में क्या रेमेडी है? रेमेडी ये है, और दूसरी मेन बात ये है कि जब ये टैक्स डिपार्टमेंट लगाता है तो जितना आप डिले करते जाएंगे इसकी पेमेंट में, उस पर इंटरेस्ट का मीटर घूमता चला जाएगा, वो आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करते चले जाएंगे। तो विवाद से विश्वास स्कीम में रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि अगर आप 31 मार्च तक अपना डिस्प्यूटेड टैक्स दे देते हैं और केस बंद करवा लेते हैं, तो आपसे जो भी उस पर इंटरेस्ट हुआ था, पेनल्टी हुई थी, वो नहीं लिया जाएगा। तो ये विवाद से विश्वास स्कीम है। इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि आपको डिपार्टमेंट को एक फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 फाइल करना होता है, जिसकी आखिरी डेट 31 मार्च होती थी, जिसे अब कोरोना वायरस की वजह से 30 जून कर दिया गया है। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते थे, डिक्लेरेशन फाइल करते थे, तो फॉर्म 3 में आपको डिपार्टमेंट बता देता है कि इतना भाई आपको डिस्प्यूटेड टैक्स देना है। ओके, आपको पता चल गया कि मेरे को इतना डिस्प्यूटेड टैक्स देना है। उसके बाद वो आपको पेमेंट करनी होती है उसकी, और फॉर्म 4 फाइल करना होता है कंफर्मेशन के लिए कि मैंने जो मेरा डिस्प्यूटेड टैक्स बनता था वो मैंने पे कर दिया है। फिर डिपार्टमेंट आपको फॉर्म 5 फाइल कर देगा, कि आपको दे देगा फॉर्म 5 कि आपका केस अब हमने बंद कर दिया है, इसके रिगार्डिंग ना आपको कोई नोटिस आएगा ना ऑर्डर आएगा। तो ये थी विवाद से विश्वास स्कीम। एक इसमें रिलैक्सेशन दूसरी ये है, एक रिलैक्सेशन तो ये हो गई कि जो 31 मार्च का टाइम था एप्लीकेशन फाइल करने का, वो अब 30 जून कर दिया गया है। दूसरी रिलैक्सेशन ये है कि जो डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना है उसकी आखिरी डेट 31 मार्च हुआ करती थी, और अगर आप उससे डिले करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा वसूला जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। मतलब आप अब अपना डिस्प्यूटेड टैक्स 31 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के, जैसे 10% एक्स्ट्रा पेमेंट के ना। आप अपना जितना बनता है उतना पे करिए और आपकी सारी इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ हो जाएगी। नेक्स्ट।
अगला इशू है डिस्प्यूटेड पेनल्टी का। मान लीजिए आपने इनकम टैक्स की पेमेंट करने में डिले कर दिया किसी जेन्युइन रीजन से। मान लीजिए आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई, इस वजह से आपका 1-2 हफ्ता डिले हो गया और आपने डिले पेमेंट करी टैक्स की। अब आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया उस चक्कर में कि यार इतने दिनों के बीच जो इंटरेस्ट बनता है वो भी साथ में पे कर दूं। अब आपके पास जब रिटर्न वगैरह फाइल हो जाती है, उसके बाद आता है आपके पास पेनल्टी ऑर्डर कि भाई आपका इतनी आपने रिटर्न फाइल हो, आपने इंटरेस्ट पेमेंट में डिले करी थी टैक्स पेमेंट में, तो आपके डिले पेमेंट की ये पेनल्टी बनती है, इसे पे करिए। आप मेरे पास आए, मैं आपका सीए था, आप मेरे पास आए कि यार ये क्या हो गया, मेरा तो कुछ बनता नहीं था, हाँ तो फालतू में पेनल्टी लगा दी। मैं क्या, आप चिंता मुक्त हो जाइए, मैं जाता हूँ आपका केस लड़ता हूँ। अच्छा, मैं लड़ा लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिली, डिपार्टमेंट अड़ा हुआ है अपनी बात से कि भाई आप डिले पेमेंट करिए तो आपको पेनल्टी भरनी ही पड़ेगी। आप सीआईटी अपील में गए, आईटीएटी में गए, लेकिन आपको न्याय नहीं मिला। अब बिजनेसमैन को भी दिख रहा है कि यार ये फालतू में मेरा केस खींचा जा रहा है, मेरी फालतू में सीए की फीस लग रही है, फालतू में डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो आप इस स्कीम को अडॉप्ट करके आप अपनी जो भी डिस्प्यूटेड पेनल्टी है उसका सिर्फ 25% पे करके अपना केस बंद करवा सकते हैं। ये 25% एप्लीकेबल है 31 मार्च तक। अगर आप इससे डिले करते हैं तो 30% पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये जो 5% एक्स्ट्रा है डिले पेमेंट का, इस पे डिपार्टमेंट ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो ये था इशू और ये थे रिलैक्सेशन। नेक्स्ट issue relating to filing of various report, statement and application। डिपार्टमेंट को आपको किसी भी चीज के लिए अप्लाई करना है, अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई रिलैक्सेशन लेनी है, जैसा हमने टीडीएस में डील करा था, ये एप्लीकेशन फाइल करनी होती है ये बोलने के लिए कि हमारा टीडीएस ना काटा जाए, तो इसी प्रकार डिपार्टमेंट में हमें बहुत सी चीजें इन्फॉर्म करनी होती हैं। एक एक करके मैं ए बी सी तीनों डील करूंगा। उससे पहले आपको रिलैक्सेशन बता देता हूँ क्या है। इन तीनों में से कोई भी चीज, स्टेटमेंट चाहे रिपोर्ट चाहे एप्लीकेशन, जो आपको डिपार्टमेंट में फाइलिंग करनी थी, अगर उसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाती है 20 मार्च से 29 जून, मतलब लॉकडाउन के पीरियड के बीच में, तो आप फाइल कर सकते हैं 30 जून 2020 तक। एग्जाम्पल से समझते हैं। रिपोर्ट अंडर सेक्शन 142(2)(a, ये क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं क्या है ये। एक एग्जांपल से समझते हैं क्या है ये सेक्शन 142(2)(a। मान लीजिए कि आप मिस्टर ए हैं और आपका केस लगा हुआ है डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एओ के सामने, स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर। और एओ को आपके अकाउंट समझ में नहीं आ रहे। उसने अपने कलीग से बात करी एओ ने कि यार ये अकाउंट्स इसके तो मेरे समझ में नहीं आ रहे, इस एसएससी के कुछ समझा दे मेरे को। उसने कहा भाई मैं अपने ही केसों में फंसा हुआ हूँ, तू खुद कर ले, अपने आप समझ ले। वो मेरे से पूछता है कि अपने अकाउंट्स का कुछ समझाओ, इतना कॉम्प्लेक्स है। उसने कहा सर आप तो बड़े ऑफिसर हैं, खुद ही समझ लो, क्या मेरे से पूछ रहे हो। तो ऐसे में जब एओ परेशान हो जाता है तो उसके पास पावर होती है कि वो एक एक्सटर्नल सीए ऑडिटर को अपॉइंट करके उस अकाउंट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकता है ऑडिट करवाकर। इस सीए को अपॉइंट कौन करेगा, इस सीए की फीस कौन देगा, ये सब लॉ में लिखा हुआ है कि इस सीए को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो ये सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और इसकी जो फीस होती है वो पे करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि लॉकडाउन से रिलेटेड इसमें क्या बात है कि जिस दिन इस चीज का नोटिस दिया जाता है एसएससी को कि हम आपके अकाउंट की ऑडिट करवाएंगे, उस दिन से 180 दिन के भीतर का ऑडिट का टाइम लिमिट होती है
कि ऑडिटर को ऑडिट करनी है 180 दिन के भीतर और उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है उसी 180 दिन के भीतर। अगर ये 180 दिन एक्सपायर हो जाते हैं लॉकडाउन के पीरियड में, तो वो अब एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया है। मतलब एग्जाम्पल से समझे कि अगर 15 अप्रैल को यानी लॉकडाउन के पीरियड के बीच 180 दिन एक्सपायर हो गए हैं, तो सीए अपनी रिपोर्ट 30 जून 2020 तक दे सकता है। अगला स्टेटमेंट अंडर रूल 37 बीबी, ये क्या है? एज ए इंडिविजुअल मैं एक पैसा ट्रांसफर करता हूँ विदेश में, इसलिए वहां पे मेरा ब्रदर पढ़ने गया है उसके लिए, या मैंने इंपोर्ट का ऑर्डर लगाया था उसकी एडवांस पेमेंट के लिए मैंने पैसा ट्रांसफर करा है। पैसा ट्रांसफर मैं किसके थ्रू करता हूँ? बैंकर के थ्रू। तो ये रूल 37 बीबी कहता क्या है कि जब आप एक बैंकर के थ्रू आगे पेमेंट ट्रांसफर करते हैं विदेश में, तो उस बैंकर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने जितनी पेमेंट आगे ट्रांसफर करी है उन सबकी डिटेल स्टेटमेंट की फॉर्म में डिपार्टमेंट को फाइल करनी होती है। और इसकी ड्यू डेट होती है, ये क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करनी होती है और इसकी ड्यू डेट होती है क्वार्टर एंड के बाद 15 दिन के भीतर। यानी अगर क्वार्टर एंड हुआ मार्च को, तो 15 अप्रैल तक इनको ये स्टेटमेंट फाइल करनी है। और इस बीच लॉकडाउन है, मान लीजिए कोई भी वजह है बैंकर नहीं कर पा रहा है 15 अप्रैल तक, तो क्या कोई रिलैक्सेशन है? बिल्कुल, ये भी टाइम लिमिट एक्सटेंड करके 30 जून कर दी गई है। अब बैंकर 30 जून तक अपनी ये स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। सी पॉइंट है एप्लीकेशन इन फॉर्म 40C एंड फॉर्म 41। हमें कोई भी चीज के लिए अप्लाई करना है, डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। अब ये एप्लीकेशन क्या है? मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है और आपके यहाँ बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं और आपको अपना सेपरेट प्राइवेट प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवाना है। प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या होता है कि एम्प्लॉयज का पीएफ काटकर उसमें जमा होता रहता है और जब एम्प्लॉय बूढ़ा हो जाता है 60 साल का हो जाता है तो उसमें से पैसा जब जुड़ जाता है उसका इंटरेस्ट के साथ उसको दे दिया जाता है। अब वैसे तो ये गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं और ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करने चाहिए, लेकिन क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं बिजनेसमैन के यहाँ, तो वो अपना प्राइवेट फंड खोल सकता है प्रोविडेंट फंड। इसके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। उसके लिए इन्हें एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है अप्रूवल लेने के लिए फॉर्म 40C में। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं मैकेनिज्म है क्या। मान लीजिए 1 मार्च 2020 को इन्होंने फॉर्म 40C में एप्लीकेशन फाइल करी अप्रूवल के लिए कि मेरे को अपना प्राइवेट प्रोविडेंट फंड खोलना है। 15 मार्च तक इनको अप्रूवल मिल जाता है और अप्रूवल में ये लिखते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स कि अगले 30 दिन के भीतर आपको फॉर्म 41 फाइल करना है। फॉर्म 41 क्या होता है? फॉर्म 41 डिटेल देनी होती है अपने एम्प्लॉयज की, मेरे यहाँ कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, उनका नाम क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और मैं इनका कितना कितना ये कितने % मैं इनका प्रोविडेंट फंड काटूंगा, इस टाइप की डिटेल देनी होती है। वो उन्होंने कहा कि आपको 30 दिन के भीतर देनी है। अब 15 मार्च से 30 दिन लगाए जाएं तो 15 अप्रैल तक उन्हें फॉर्म 41 फाइल करना है और इस बीच लॉकडाउन हो गया, तो क्या कोई रिलैक्सेशन है फॉर्म 41 को फाइल करने की? तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है कि आप ये फॉर्म 41 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आधार पैन लिंकिंग। आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी डेट लॉकडाउन से पहले 31 मार्च हुआ करती थी, जिसे अब बढ़ा के 30 जून 2020 कर दिया गया है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स रिफंड। इस इशू को पढ़ने से पहले समझते हैं कि ये इनकम टैक्स रिफंड है, होता क्या है। मान लीजिए कि आप अपने सीए के पास जाते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर रिटर्न फाइलिंग के लिए। आपका टैक्स कैलकुलेट करता है सीए और निकालता है कि आपका 1000 रुपये का टैक्स बनता है।
आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने अभी तक जो मैंने एडवांस टैक्स दिया है और जितना मेरा टीडीएस काटा गया है वो इससे ज्यादा है। एग्जाम्पल के रूप में आपका टैक्स बना 1,000 रुपए और अभी तक आप एडवांस टैक्स जो दे चुके थे और टीडीएस जो आप दे चुके थे वो था 2,000। टैक्स आपका 1,000 बनता था, डिपार्टमेंट को आप 2,000 दे चुके हैं, यानी 1,000 फालतू दे चुके हैं। अब वो ऐसे मेरा क्लाइंट मेरे से बोलता है कि सीए साहब अब क्या होगा, मैं तो 1,000 फालतू दे चुका। उन्होंने कहा भाई ठंड रख, मैं बताता हूँ उपाय, बताता हूँ उपाय क्या है। मैंने कहा कि हम जब रिटर्न फाइलिंग करेंगे आपका ये 1,000 रुपये रिफंड क्लेम कर लेंगे। तो एसएससी के क्लाइंट के सांस में सांस आई, अरे बढ़िया रहा, वरना मैं तो सोच रहा था यार डिपार्टमेंट के पास 1,000 फालतू चले गए। तो ये होता है इनकम टैक्स रिफंड, आप इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू क्लेम कर सकते हैं अगर आपने फालतू पेमेंट कर भी दी है डिपार्टमेंट को। अब इशू ये आता है कि इनकम टैक्स रिफंड आपको कब तक मिलेगा। इनकम टैक्स रिफंड आपको जब ही मिलता है जब तक आपकी प्रिलिमिनरी असेसमेंट नहीं हो जाती। सेक्शन 143(1) के अंदर, जो मेरे कलीग अभिनव जी ने आपको कल बताई थी, 143(1) के अंदर इंटीमेशन आता है। जो इस इंटीमेशन की टाइम लिमिट जो होती है वो 1 साल होती है रिटर्न फाइलिंग के बाद। तो इतना टाइम आपको वेट करना है। इस टाइम पीरियड को बोलते हैं कि आपका इनकम टैक्स इतने टाइम पीरियड के लिए पेंडिंग रहा। तो डिपार्टमेंट ने क्या लेके आए, क्या रिलीफ लेके आए लॉकडाउन में, उन्होंने कहा जितने भी पेंडिंग रिफंड है 5 लाख रुपए तक के, वो सारे रिलीज कर दिए जाएंगे इमिडिएटली, चाहे उसका असेसमेंट हुआ है चाहे नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, चाहे आपका इंटीमेशन आया है या नहीं आया है, आपका पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड जो 5 लाख तक का है वो आपको रिलीज करा दिया जाएगा। दूसरी बात, ये मिलेगा किस किस को, जितने भी बिजनेस एंटिटीज हैं उनको मिलेगा, इंडिविजुअल हैं उनको मिलेगा, और जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको मिलेगा। ओके, थैंक यू। I guess this is all what what the speakers wanted to present over here. Here is the first question. The question has been asked by Mr. Singh. Ajay Singh. Under which section or clause we can find out about a sole proprietor business closure which was closed before GST? In case of any legal matter, a sole proprietor is just presenting last assessment return but has not provided any document of closure of business and stating that the business has been closed due to heavy loss. The answer is given in the registration chapter of GST. ये पूरा मामला जो है इनका जीएसटी का है और उसके अंदर एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है जीएसटी के अंदर, जैसे रजिस्ट्रेशन के अंदर से ही नाम दिया है, उसमें सारे डिटेल दिए कि कैसे आपको क्लोजर करना है, क्या क्या फॉर्म है होते हैं, सारी चीजें उसके अंदर है। अगर इनकी क्वेरी पर्सनल लेवल पे है तो मेरे को ईमेल कर दें, तो मैं जीएसटी के ऊपर पूरी इनको समझा भी दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक हमारा इनकम टैक्स का है, ये मामला पूरा जीएसटी का है। इसका ये रजिस्ट्रेशन का जो है इनका रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर है जीएसटी के। Okay. हाँ, इनका सेकंड क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द लास्ट डेट टू फाइल लास्ट फाइनेंशियल ईयर रिटर्न इन केस ऑफ चैरिटेबल फॉर्म? ओके, एसएससी कोई भी हो, अगर सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन से फाइनेंशियल ईयर, अगर आप बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, तो लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है 30 जून 2020, और अगर आप बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, तो उसकी लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है 30 नवंबर 2020। ओके, माइट भी सर को आंसर मिल गया होगा। हेलो सर, एक और क्वेश्चन है शव्य शर्मा का, विच सेक्शन और सेक्शंस आर एप्लीकेबल फॉर फॉर्म 15G and 15H? आई विल हैंडल दिस। एक्चुअली ये सेक्शन इनकम टैक्स के अंदर 5 सेक्शंस होते हैं। देयर आर 5 सेक्शंस अंडर विच फॉर्म 15G and form 15H are given. These are actually section 192A,
सेक्शन 193, सेक्शन 194A, सेक्शन 194D, सेक्शन 194DA, सेक्शन 194I। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन सेक्शंस में क्या क्या कहा गया है। सेक्शन 192A जो होता है, इसमें एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉय जो होते हैं उनका जो पीएफ का होता है वो बैलेंस का मैच्योर होने के बाद जब निकालते हैं उसके ऊपर है 192A। 193 क्या होता है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज आप लोग समझ रहे होंगे, जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाते हैं, ये सब चीजें, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज इनको अंदर आती हैं सारी चीजें। सिक्योरिटाइजेशन एक्ट होता है इसका पूरा। तो 193 टीडीएस ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर होता है। 194A ये आपका बैंक की एफडी के ऊपर मिलता है आपका 194A। 194D आपका होता है इंश्योरेंस में जो कमीशन आप होता है, टीडीएस कटता है, उसे कहते हैं 194D। 194DA होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो आप टीडीएस पेमेंट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कोई एसएससी लेता है उसके ऊपर जो लगता है टीडीएस, वो 194DA में कवर करते हैं। 194I होता है, वो रेंट के ऊपर होता है टीडीएस। 194I इज ऑन टीडीएस ऑन रेंट। तो बेसिकली 5 सेक्शंस हैं, 192A से स्टार्ट करके 194I तक हैं, और ये मैंने उनके डिटेल्स दे दिए, एंड इट्स गिवन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा, होप शब्बीर शर्मा को उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे। एनी अदर क्वेरीज? Yes, there are other questions as well. After getting from ये मिस श्रुति सक्सेना का आपने सवाल टेकअप किया? नहीं, उनका मुझे मैसेज नहीं मिला। After मैं टेकअप कर देता हूँ। After getting Form 3, from which department within which days the payment would be made? ओके, फॉर्म 3 विवाद से विश्वास स्कीम की बात कर रही हैं मैम। विवाद से विश्वास स्कीम में जो फॉर्म 3 आता है उसको विद इन 15 डेज पेमेंट करनी होती है, और उसकी इंटीमेशन देनी होती है फॉर्म 4 में। ओके, और इसका सेकंड पार्ट भी है सर। हेलो, हाँ विपुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? और ना, बस इतना ही है कि जो भी पेमेंट करनी है वो फॉर्म 3 के आने के बाद 15 दिन के भीतर करनी होगी, और फर्दर फॉर्म 4 फाइल करना होगा इंटीमेट करने के लिए कि हमने पेमेंट कर दी। सर कौन से डिपार्टमेंट में करनी होगी? इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू ये आपकी इनकम टैक्स वेबसाइट पे फॉर्म है, उसमें सीधा आप जैसे ही उसको सबमिट करेंगे वो जो आपका असेसिंग ऑफिसर है उस पर डायरेक्ट पहुंच जाएगा। होता क्या है कि जो आपका असेसिंग ऑफिसर होता है वो लिंक होता है आपके पैन। माइट बी द आंसर इज कि उनको ऑनलाइन ही फाइल करनी है। ऑनलाइन में आपका अपने लॉगिन करिए और जो भी आपका फॉर्म है फिलअप करके 15 डेज के अंदर पेमेंट के साथ आप फाइल करिए। जो भी आपके पैन कार्ड से रिलेटेड असाइन ऑफिसर हैं उनके पास आप ऑनलाइन ही भेज सकते हैं, आपको हार्ड कॉपी डिपार्टमेंट में सबमिट करने की जरूरत नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी क्वेश्चन है क्या? यस, मैं पूछ रहा हूँ लोगों से। अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज पूछ लीजिए। हाँ जी। Any other personal queries, personal matters not related to this topic, related to any other tax related any queries, mail us. Our expert will revert to you. Another case is here. Hello, expert is here. Okay, I've got some query through message system. This query is. Speakers, am I audible to you? Yes. Okay. The query is, sir, in my case order has been passed before 31st January 2020. Am I eligible for विवाद से विश्वास स्कीम? इनके में ऑर्डर पास हो गया था 31 तारीख से पहले, तो ये यही पूछ रहे हैं। यस, अगर आपका 31 जनवरी मतलब मान लीजिए आपका केस IT/AT में पेंडिंग था और आपका ऑर्डर 31 जनवरी से पहले आ चुका है विवाद से, इसमें आपके नॉर्मल IT/AT का ऑर्डर 31 जनवरी
2020 तक आ चुका है और आप आगे उसकी अपील करना चाहते हैं हाई कोर्ट में, चाहे कहीं भी आगे फर्दर अथॉरिटी में आप अपील फाइल करना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम लिमिट होती है 30 दिन की। अगर वो टाइम लिमिट 30 दिन की 31 जनवरी 2020 से पहले एक्सपायर हो जाती है तब आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो एक्सपायर नहीं हुई है 31 जनवरी 2020 तक, तो आप विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। Okay, thank you. This question was posted by Ms. Chevy. There is another question from Ms. Shruti. If a person filed declaration under Vivad se Vishwas scheme and due to financial difficulties not able to pay disputed tax, then what will be the consequences? Is it clear, sir? Yes. मतलब क्वेश्चन ये है कि आपने विवाद से विश्वास स्कीम में आपने डिक्लेरेशन दे दी है और उसके बाद आप कहते हैं कि मैं तो डिस्प्यूटेड टैक्स पे नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है डिपार्टमेंट थोड़ी ना इन सब बातों के लिए सुनने के लिए बैठा है, वो आपकी सीधी जो भी डिक्लेरेशन है उसको वॉइड कर देगा। Okay. Ms. Shruti, I hope your query has been answered, right? Any other? If there is any other query, Please let us know. okay. We are waiting for any. If there is any other query. Okay. Shall I conclude? Hello friends, we have heard both the session. Both the session is directly dealt with the present scenario of tax regime in India. Basically, we have dealt with the condition of present society, which is arose after the corona epidemic. COVID-19 की वजह से जो टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स में क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं, टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक को आपके सामने प्रोड्यूस किया। पर्पस क्या था इस पूरे वेबिनार का, इस दोनों सेशन का जो पर्पस था, आम पब्लिक को या टैक्स में रुचि रखने वाले इंसान जो टैक्स पेयर हैं, पब्लिक है, जिनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, गवर्नमेंट कर क्या रही है और हमें फैसिलिटी क्या मिल रही है। प्रॉब्लम ये है कि सभी अपने घरों में बंद है, सबके पास सोचने के लिए एम्पल टाइम है, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कम है, तो इस पूरे प्रोसेस में इंसान टैक्स को लेकर एंजाइटी में आ जाता है। अर्निंग का सोर्स ब्लॉक हो गया है, लेकिन टैक्स पेमेंट को लेकर लोगों के अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहती है, क्योंकि हमने आज तक टैक्स को एक बर्डन की तरह लेके चला है। इस पूरे लॉ को हमने समझने की कभी कोशिश नहीं की है। नाउ आवर एक्सपर्ट्स ट्राई टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर इश्यूज विद द इंडिविजुअल्स और उसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रहे हैं कि कैसे लॉज को ग्रेजुअली चेंज किया गया, ग्रेजुअली चेंज करके इस एपिडेमिक के साथ आपको वो सब सहूलियतें दी गई ताकि आप पैनिक क्रिएट ना कर सको अपने साथ, और अपने जो भी प्रोसेस है टैक्स के पेमेंट से लेके आपके डिडक्शन से लेके जो भी प्रोसेस है आप उसको इजीली अवेल कर सकते हो। इवन एपिडेमिक के अंदर अगर आपने प्रधानमंत्री को अगर आपने डोनेशन की है कोर्ट में एक एपिडेमिक को लेके, उसके लिए एक सर्टेन प्रोविजंस के थ्रू आपको डिडक्शन मिलता है आपके टैक्स पेमेंट में, रेशियोज में। तो ये दोनों सेशन, कल का और आज का, इस दोनों चीजें दो मुद्दों को लेके चलती है कि हमारा टैक्स का लॉ क्या कहता है एक इंडिविजुअल के लिए, और इस एपिडेमिक को कैसे रिलेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं। उन चेंजेस के बेसिस पे जो सहूलियतें मिली हैं, जो मेजरमेंट को डिसाइड करके जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, दैट फैसिलिटीज को हमने एक पॉइंट में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ओके, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं जरा, एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहता हूं। जो भी फाइनेंशियल पैकेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिए गए हैं वो क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम द टैक्सेशन एंड अदर लॉज ऑर्डिनेंस के में। ये एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है,
वो फाइनेंशियल पैकेज दिया गया है। इसमें कोई भी आप लोग पार्टिसिपेंट कंफ्यूज मत होइएगा कि जो पैकेज है क्या वो टैक्स है। टैक्स एक तरह का लॉ है और वो एक पैकेज है, ये वर्ड में ही क्लियर कट लिखा हुआ है। तो डोंट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग दिस। तो ये एक अलग ही कंसेप्ट है, ये अलग चीज है। इसके अंदर टैक्स एंड ऑर्डिनेंस के अंदर सीधा सीधा मैंने भी बताया था पहले कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस के बारे में रिलीफ मेजर पास करे हैं कोविड-19 के द्वारा जो चेंजेस आए हैं। मगर फाइनेंशियल पैकेज आपको एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आपको पैकेज दिया है कि क्या क्या किस किस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट सेक्टर में चेंजेस आए उनको कुछ पैकेज दे दिया, लेबर सेक्टर में दिया गया। कई फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं, मेडिकल सेक्टर होता है, फाइनेंशियल साइड में आपके बहुत सारे सेक्टर में, शिपिंग इंडस्ट्री होती है, कई सारी इंडस्ट्री, एमएसएमई को बहुत सारा वो दिया गया है। तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल पैकेज के अंदर आती हैं। और ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था 31 मार्च 2020 ड्यू टू कोविड-19, it is totally based on the taxation issues. So this I want to clarify. I want to say something. इसको जो अभिनव सर ने अभी बोला उसको कंटिन्यूएशन में कर रहा हूँ। जो पैकेज है वो फाइनेंस या डिफरेंट इंडिया के सेक्टर्स को क्लब करके टोटल अमाउंट कोट की गई है। जब हम उसकी बात करते हैं, उसके डिवीजन को देखते हैं, तो वी विल गेट दैट डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक डिफरेंट अमाउंट बाइफरकेट किया गया है, जिसमें रियल एस्टेट आते हैं, मिडिल क्लास आती है, एमएसएमई आते हैं। द थिंग इज फाइनेंशियल मेजरमेंट एंड फाइनेंशियल पैकेज, इन दोनों को क्लब नहीं की जा सकती। क्लब इसलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए वो पैकेज दी हुई है, और जो हम अर्न कर चुके हैं उसको टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जो हर साल हम देते हैं उसके लिए रिलीफ मेजरमेंट आई है। इसलिए दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। Okay. आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? There is one question again by Miss Chevy. If I want to apply for nil deduction of TDS for financial year 2021 from 1st of April 2020 to 20th June 20, and I do not have any certificate for the financial year 2019-20, then what is the remedy available? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ अगर क्लियर नहीं है तो। ओके, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने 19-20 का इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है इस चीज का कि मेरा नील टैक्स काटा जाए, मतलब टैक्स ना काटा जाए, टीडीएस ना काटा जाए, और अब मेरे को 20-21 में अप्लाई करना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कैसे अप्लाई करें, क्या कोई रिलैक्सेशन है मिनिस्ट्री की तरफ से? तो हाँ बिल्कुल, इन्होंने क्लैरिफिकेशन के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर आप लॉकडाउन की वजह से एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिपार्टमेंट की मेल आईडी पे हमें जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो मेल कर दीजिए एप्लीकेशन के साथ। अगर हम उससे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट ईमेल के थ्रू ही प्रोवाइड करा देंगे। तो ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराई है इन्होंने। Okay. I hope the question has been properly answered. Yes. Basically, I like to thank all the participants who invest their time for this useful webinar, And as well as our speaker who has उन्होंने अपने टाइम निकाला हमारे काम के लिए, हमारे वेबिनार के लिए, हमारे पार्टिसिपेंट के लिए, और अपने वैल्यूएबल इंसाइट along with their research हमें साझा किया, हमें अवेयर कराया, इसलिए उनको very thankful. In future we are like to work with them also, so in future a webinar related to that, or hopefully we will join together on 20th of May on our next webinar. Yes. और हमारे YouTube चैनल को जरूर देखिए और उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए। Thank you. Take care. Bye bye. See you. Okay, thank you. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Bye bye. थैंक यू।